جب کبھی بھی ہم لوگوں کے سامنے ایران کا نام لیا جاتا ہے تو زیادہ تر لوگوں کے دماغ میں ایک ایسے ہی دیش کا خیال آتا ہے جو کافی بیکورڈ ہے، جہاں پر زیادہ ٹیکنیکل ایڈوانسمنٹ نہیں ہے، یا کم سے کم وہ دیش اتنا پیچھے ضرور ہے کہ جہاں کا انفراسٹرکچر، جہاں کی انڈسٹریز وغیرہ یورپین طاقتور اور امیر دیشوں کے مقابلے میں کافی پیچھے ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی مانا جاتا ہے کہ آج کے دور میں کہ جب دنیا کے جو چند گنے چنے طاقتور اور امیر دیش ہیں ان کی طرف سے ایک کے بعد ایک بڑے بڑے حیران کر دینے والے پروجیکٹس کا اعلان ہوتا رہتا ہے، تو ایران کی طرف سے میڈیا میں ایسا کچھ بھی نظر نہیں آتا ہے۔ ہالی ووڈ فلم انڈسٹری کی زبان میں بولوں تو ایران کو آج بھی دنیا کے زیادہ تر دیشوں میں ایک بلیک اینڈ وائٹ دیش کے طور پر دکھایا جاتا ہے، مگر آپ کو جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ ایران کی تصویر تو میڈیا کے ذریعے سے دکھائے جانے والی اس تصویر سے بالکل اپوزٹ ہے۔ لمبے وقت سے ویسٹ کی طرف سے لگائے گئے ہیوی سینکشنز کے باوجود بھی اس نے جس طریقے سے اپنا انفراسٹرکچر یا باقی چیزیں ڈیولپ کی ہیں وہ تو سرپرائزنگ ہے ہی، مگر موجودہ دور میں بھی دنیا کے چند گنے چنے امیر اور طاقتور دیشوں کی طرح ایران کی طرف سے بھی جس طرح کے بڑے بڑے پروجیکٹ پر کام چل رہا ہے، جس طرح کے میگا پروجیکٹ انڈر پروسیس ہیں، ان کے بارے میں جان کر آپ لوگ شاید حیران ہو جائیں گے۔ اور آج کی اس ویڈیو میں بھی ہم آپ لوگوں کے سامنے ایران کے کچھ ایسے ہی میگا پروجیکٹس رکھنے والے ہیں کہ جن کے بارے میں یہ مانا جاتا ہے کہ وہ نہ صرف ایران کو بلکہ اس پورے ریجن یعنی مڈل ایسٹ کو ہی بدل کر رکھ دیں گے۔ شروعات کرتے ہیں جس میں پہلے ہی نمبر پر ہے واٹر ٹرانسفر پروجیکٹ فرام اومان سی ٹو سینٹرل ایران۔ یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے کہ جس کو ایران کے پورے سینٹرل پارٹ کے لیے لائف لائن مانا جاتا ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ اگر آپ کی نالج میں نہیں ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ ایران کے جتنے بھی کنارے پر بسے ہوئے شہر ہیں وہاں پر تو اچھی خاصی بارش ہوتی ہے، لیکن جو بیچ کے ہیں، جو سینٹرل پارٹ میں آباد ہیں، وہ نہ صرف پانی کی کمی سے جوجھتے رہتے ہیں بلکہ وقت وقت پر وہاں پر خطرناک سوکھا بھی پڑتا رہتا ہے۔ ہر گزرتے وقت کے ساتھ یہ پریشانی بڑھتی ہی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے وہاں کا جو ایگریکلچر ہے، جو کھیتی باڑی ہے، وہ تو افیکٹڈ ہے ہی، ساتھ ہی ساتھ ڈومیسٹک سپلائی لائن پر بھی خطرہ منڈرا رہا ہے۔ مطلب ممکن ہے کہ فیوچر میں لوگوں کو روزمرہ کی ضرورتوں کے لیے بھی پانی نصیب نہ ہو سکے۔ اسی خطرے کو دیکھتے ہوئے ہی ایران کی طرف سے اس پروجیکٹ کا فیصلہ لیا گیا تھا، اور مانا جاتا ہے کہ یہ ایران کی ہسٹری کا لارجسٹ واٹر ٹرانسفر پروجیکٹ ہے، جس میں سب سے پہلے تو اومان اور ایران کے بیچ میں موجود سمندر سے پانی لیا جائے گا، پھر اس نمکین پانی کو پیوریفائی کیا جائے گا، پورے ٹیکنیکل پروسیس سے گزارا جائے گا اور اس کے بعد آگے ٹرانسفر کیا جائے گا۔ ٹرانسفر کرنے کے لیے بھی پائپ لائن کا ایک بہت ہی لمبا چوڑا جال بچھایا جا رہا ہے، کیونکہ یہ پانی کہیں قریب میں نہیں بلکہ سینٹرل ایران میں جانا ہے، جو اگر بھوگول کے حساب سے دیکھا جائے تو کافی بڑا ہے۔ اسی لیے پانی کو ٹرانسفر کرنے کے لیے یہ جو پائپ لائن ہے اس کی لمبائی بھی لگ بھگ 500 کلومیٹر کے قریب بتائی جا رہی ہے۔ زمین کو کھود کر بنائے گئے اس لمبے چوڑے پائپ لائن سسٹم کے ساتھ ساتھ پمپنگ اسٹیشن بھی ہوں گے، جبکہ جگہ جگہ پر اسٹوریج انفراسٹرکچر بھی بنایا جائے گا تاکہ جگہ جگہ پر پانی کو ریزرو کر کے اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ کھیتوں میں، انڈسٹریز میں یا پھر گھروں وغیرہ پر ہر جگہ سفیشینٹ پانی پہنچ سکے۔ ایران کی گورنمنٹ کو لگتا ہے کہ سینٹرل ایران میں آج ایگریکلچر، انڈسٹریز یا پھر عام لوگوں کی زندگی میں بھی جو واٹر شارٹیج کا ایک بڑا خطرہ ہے ان کے بس ایک اس میسو پروجیکٹ سے بہت جلد ہی حل ہو جائے گا۔ اسی لیے انہوں نے شروعاتی دور میں ہی اس پروجیکٹ کے لیے $400 ملین کا اعلان کیا۔ حالانکہ جیسے جیسے یہ پروجیکٹ آگے بڑھے گا اس کا خرچہ بھی بڑی ہی تیزی کے ساتھ بڑھتا جائے گا۔ الگ الگ رپورٹس یہ اشارہ دیتی ہیں کہ شاید ایران کا یہ پروجیکٹ 23% کے قریب کمپلیٹ ہو بھی چکا ہے۔ باقی یہ تو فیوچر میں ہی پتا چلے گا کہ ایران اپنے مقصد میں کامیاب ہو بھی پائے گا یا پھر نہیں، کیونکہ ظاہر ہے واٹر ٹرانسفر کرنے کے لیے یہ جو پائپ لائن ہے یہ حد سے زیادہ لمبی ہے، اور ایران کی جس طرح کی زمین ہے الگ الگ ایریے میں الگ الگ طرح کی، اسی وجہ سے انجینئرز کو اس پروجیکٹ میں بہت ساری مشکلوں کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ آگے بڑھیں تو اس لسٹ میں اگلا نام ہے چابہار پورٹ ڈیولپمنٹ کا۔ ایران کا یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے جس میں سب سے اہم رول انڈیا کا ہے، اور شاید ایران کا یہی وہ پروجیکٹ ہے کہ جس کو لے کر امریکہ اور اسرائیل پچھلے کچھ وقت سے سب سے زیادہ پریشان نظر آتے ہیں۔ شروعات ہوتی ہے 2016 اور 17 کے دور سے کہ جب انڈیا نے اس پورٹ میں انٹرسٹ لینا شروع کیا، اور انڈیا اور ایران کے بیچ اس کو لے کر کئی ڈیلز وغیرہ بھی ہونی شروع ہو گئیں۔ شروعاتی دور میں تو انڈیا کی طرف سے اس پورٹ کی میجر ٹرمینل کو ڈیولپ کرنے یا پھر اس کو آپریٹ کرنے کی ہی ذمہ داری لی گئی تھی، مگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ویسے ویسے انڈیا کا انویسٹمنٹ
इन्वेस्टमेंट और इस पर इन्फ्लुएंस बढ़ता गया। आसान भाषा में कहूँ तो आप ये समझिए कि इंडिया ने वक्त के साथ ईरान के इस पोर्ट को डेवलप किया है, इसको बहुत ऊपर तक पहुँचाया है और बदले में सरकारी कंपनी के जरिए से बड़ी बड़ी डील करके ईरान से इसको अपने अंडर में भी ले लिया है। एक्सपर्ट्स हमेशा से ही ईरान के इस बड़े फैसले को एक मास्टर स्ट्रोक की तरह देखते आए हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर इस पोर्ट को अपने कंट्रोल में लेने में भला ऐसी भी क्या खास बात है। दरअसल मामला ये है कि इंडिया का जो पड़ोसी देश है मतलब कि पाकिस्तान, उससे इंडिया के कभी भी रिश्ते अच्छे रहे ही नहीं, जिसकी वजह से इंडिया को ऊपर जाने में यानी कि अफगानिस्तान जाने में, रशिया जाने में, सेंट्रल एशियन जितनी बाकी कंट्रीज हैं वहां तक जाने में या ऊपर यूरोप की बाकी कंट्रीज में जाने में परेशानी होती है। अब ये जो चाबहार पोर्ट है इसके जरिए से इंडिया न सिर्फ अफगानिस्तान में पहुंचता है, इसके अलावा बड़ी ही आसानी के साथ ईरान से गुजरकर ऊपर बाकी सेंट्रल एशियन कंट्रीज में, रशिया में या यूरोप की कंट्रीज में भी पहुंच सकता है। सुएज कैनाल का जो एक लंबा ट्रेडिंग रूट है कि जिसको बाकी दुनिया के साथ साथ भारत भी यूज करता ही आया है, उसके मुकाबले में ये जो चाबहार पोर्ट का रूट है ये बहुत ही शॉर्ट हो जाता है। इस प्रोजेक्ट में बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाले इंडिया को अमेरिका कई बार सैंक्शंस की धमकियां भी दे चुका है, लेकिन इंडिया के ऊपर उसका कोई खास असर कभी दिखा नहीं। धमकियों की वजह यही है क्योंकि अमेरिका अच्छी तरह से जानता है कि चाबहार पोर्ट के कामयाब होने का मतलब सिर्फ चाबहार पोर्ट ही नहीं है, बल्कि इससे ईरान के अंदर की भी तस्वीर बदल जाएगी। क्योंकि ये चाबहार पोर्ट तो सिर्फ एक हिस्सा है एक बड़े प्रोजेक्ट का कि जिसको हम लोग नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के नाम से जानते हैं। ये एक तरीके से आज के दौर का सिल्क रोड है कि जहाँ पर ट्रेन, शिप वगैरह के जरिए से रशिया, इंडिया, ईरान, अजरबैजान और इस तरह के बाकी और भी देशों के बीच में खूब व्यापार होगा। और जब ये सारा काम ईरान के एक पोर्ट के जरिए से या ये कह सकते हैं कि ईरान के बीच से गुजरकर ही हो रहा होगा, तो ईरान के अंदर सिर्फ रेलवेज और बाकी ट्रांसपोर्ट सिस्टम ही नहीं बदलेगा, बल्कि इंडस्ट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट का सिनेरियो सब कुछ बदल जाएगा। ईरानियन प्रोजेक्ट्स की इस लिस्ट में अब अगर आगे बढ़ें तो अगला नाम है तेहरान मशहद हाई स्पीड रेलवे का। इस प्रोजेक्ट के बारे में जानने के लिए हमको इंडिया की बजाय उसके पड़ोसी चाइना की तरफ चलना पड़ेगा। पिछले कुछ वक्त से ये देखा गया है कि ईरान के ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट के जिसको वो फ्यूचर में पूरा करना चाहता है, उसमें उसकी मदद करने के लिए मौजूदा दौर का इकोनॉमिक सुपर पावर यानी कि चाइना सामने निकल कर आया है। पूरे ही ईरान देश में फैले हुए बहुत सारे छोटे बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर चाइना ने बिलियंस में इन्वेस्ट किया हुआ है। उसी में से एक बड़ा और अहम प्रोजेक्ट है तेहरान मशहद हाई स्पीड रेलवे। लगभग 900 किलोमीटर पर फैली हुई ये लंबी रेलवे लाइन पूरी ही मिडिल ईस्ट की लॉन्गेस्ट हाई स्पीड रेलवे लाइन होगी। ईरान और मशहद के बीच लोगों को लेकर चलने वाली ये ट्रेन 350 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से दौड़ा करेगी और ये कितनी ज़्यादा फास्ट और कितनी ज़्यादा एडवांस होगी, इस चीज़ का अंदाज़ा बस इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिस जगह पर पहुंचने के लिए लोगों को अभी लगभग 12 घंटे का समय लगता है, वहां तक पहुंचने के लिए सिर्फ और सिर्फ 6 घंटे ही लगा करेंगे। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 42 महीने का एक पीरियड फिक्स किया गया है, जबकि बात सिर्फ यहीं पर ख़त्म नहीं होती है, बल्कि चाइना ईरान का जो काफ़ी पुराना रेल सिस्टम है उसको भी अपग्रेड करने में मदद कर रहा है, ताकि जो नई से नई एडवांस ट्रेन्स उतारी जाएं उनको ये पुराना सिस्टम ही अकोमोडेट कर सके। ईरान के रेलवे सिस्टम को या बाकी ट्रांसपोर्ट सिस्टम को जल्द से जल्द एडवांस बनाने में चाइना की दिलचस्पी इसलिए भी है क्योंकि ईरान और चाइना की दोस्ती जैसा कि हम जानते हैं कि हर गुजरते वक्त के साथ स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। चाइना ईरान के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है या फ्यूचर में करना चाहता है और उस सारे इन्वेस्टमेंट को फ्रूटफुल बनाने के लिए ही वो यहाँ के पूरे सिस्टम को भी अपग्रेड कर रहा है। हमारे इस लिस्ट में अब अगला नाम है ईरान नॉर्थ फ्रीवे का, या ये भी कह सकते हैं कि ईरान नॉर्थ एक्सप्रेसवे। जाहिर है ईरान के किसी भी बड़े से बड़े प्रोजेक्ट का रास्ता भी एक अच्छे हाईवे से ही होकर गुजरेगा, और जिस तरह का एरिया के हिसाब से ईरान एक बड़ा देश है, ऐसे बड़े देशों के अंदर अच्छे एक्सप्रेसवे ही इकोनॉमी को तेजी के साथ आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा करते हैं। वैसे तो बाकी डेवलपिंग कंट्रीज की तरह ईरान के अंदर भी एक्सप्रेसवे से जुड़े हुए बहुत सारे अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट चलते ही रहते हैं, मगर वो एक प्रोजेक्ट जिसकी चर्चा
अक्सर इंटरनेशनल मीडिया में भी होती रहती है, वो दरअसल ईरान नॉर्थ फ्री वे है या जिसको अलबर फ्री वे के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो ये सिर्फ लंबाई में लगभग 121 किलोमीटर के करीब ही है, जो जाहिर है आप लोगों को भी कम ही लग रहा होगा, लेकिन जो चीज इसको खास बनाती है वो है इसकी लोकेशन। ये दरअसल राजधानी तेहरान से कैस्पियन सी तक जाएगा। ये दरअसल ईरान के नॉर्थ का सबसे बड़ा 6 वे हाईवे प्रोजेक्ट होगा। लोकेशन के एंगल से ये पूरा एरिया काफी मुश्किलों से भरा हुआ माना जाता है, क्योंकि इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाने के लिए भी बहुत सारे पहाड़ों चट्टानों को खोदना पड़ेगा या फिर काटना पड़ेगा। इसी बड़े एक्सप्रेस वे के प्रोजेक्ट के अंदर ही लगभग 39 के करीब टनल जबकि 59 के करीब ब्रिजेस भी बनाए जाएंगे, जिसमें लगभग 6.5 किलोमीटर की भी एक टनल शामिल होगी कि जो ईरान की अभी तक की सबसे लंबी टनल होगी। जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो इसकी वजह से इस पूरे एरिया में ट्रैवलिंग का जो टाइम होगा वो लगभग आधा हो जाएगा। साथ ही साथ इस पूरे कैस्पियन एरिया में न सिर्फ ट्रेड बल्कि टूरिज्म के मामले में भी ईरान को एक बड़ी बढ़त देखने को मिलेगी। यहाँ पर एक दिलचस्प बात ये भी है कि लगभग 32 किलोमीटर के करीब तो ये प्रोजेक्ट बहुत पहले ही कंप्लीट हो चुका है और सिर्फ इतने में ही ईरानी गवर्नमेंट को लगभग 100 ट्रिलियन रियाल के करीब खर्च करने पड़े, जो अगर डॉलर में कन्वर्ट करें तो लगभग बनते हैं 1 बिलियन डॉलर्स, क्योंकि उसके बाद फिर यूएसए के सैंक्शंस की वजह से इंटरनेशनल कंपनीज ने अपने हाथ खींच लिए थे, जिसके बाद फिर काम रुका रहा और आखिर में ईरान को अपनी लोकल कंपनीज के हाथ में ये सब कुछ देना पड़ा। आगे बढ़ें तो प्रोजेक्ट्स की इस लिस्ट में अगला नाम है साउथ पार्स गैस फील्ड डेवलपमेंट का। एनर्जी के फील्ड में ये ईरान के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक प्रोजेक्ट माना जाता है। दरअसल ईरान 1999 से ही पूरी शिद्दत के साथ अपने इस मकसद पर काम कर रहा है और मकसद यही है पर्शियन गल्फ के नीचे दबे हुए नेचुरल गैस के ज्यादा से ज्यादा रिजर्व को ढूंढना, उनको बाहर निकालना, प्रोसेस से गुजारना और फिर ईरान की इकोनॉमी में लगाना। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ईरान का एनर्जी से जुड़ा हुआ ये प्रोजेक्ट लगभग 24 फेसेस में डिवाइड किया जाता है और इनमें से हर फेस अपने आप में ही एक बड़ा प्रोजेक्ट है। इनमें से बहुत सारे ऑलरेडी ऑपरेशनल हो भी चुके हैं, जबकि बाकी की जल्द ही होने की उम्मीद जताई जा रही है। मतलब ईरान तेल के साथ साथ गैस के मामले में भी दुनिया का एक बड़ा प्लेयर बनना चाहता है। ऐसा होगा या नहीं ये तो फ्यूचर में ही पता चलेगा। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें और ऐसे ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।